Sister Salome was born on 20th October 1953 in Bisal village in the district of Godda, Diocese of Bhagalpur, Jharkhand, into a devout Catholic family. She was the second of 7 children born to the late Rudolf Tudu and Martha Soren. Her second youngest brother, Father Shyam Kishore, is a Jesuit priest serving at Charhi, Jharkhand in the Hazaribagh province. Her parents were simple farmers, deeply rooted in prayer and faithful to daily participation in the Eucharist. Her parents were invited to Babu Mahal to assist in developing the new mission established by the TOR fathers. From childhood, Sister Salome felt a call to religious life. After the completion of her class 12, the family faced the painful loss of their father. Sister Salome lovingly took responsibility of educating her younger siblings. She did her teacher's training under the guidance of Sister Sigrid Vogel at St. Teresa Training Institute, Betia. For 4 years, she worked as a teacher at Mahesh Munda to support her family and ensured her brother's education. Once the family situation improved, she joyfully received permission from the family to join the convent. In June 1981, she entered the Holy Cross congregation at Hazaribagh. After her first profession, she was assigned to pastoral ministry from 1985 to 1991, serving in Siddhapahad, Dumga, and later in Balatad. She collaborated wholeheartedly with the priests, shared in the joys and struggles of village families. Even during illness in 1992, when she underwent treatment for a kidney infection, her dedication to ministry remained steadfast. From 1993 onwards, having regained her health, Sister Salome devoted herself to education ministry for over 3 decades. She faithfully served as in charge of pre-primary and primary schools in Rajipur, Mahinagar, Garhi, Batsangar, and Dalkola. Sister Salome was a prayerful, loving, cheerful, enduring, and a very positive person. Her warm relationships with her superiors and community members were remarkable. Her life was marked by gratitude and unwavering trust in God. She also remained ever grateful to all those who helped her in any way. In 2024, she was diagnosed with cancer and was brought from Rajipur community to Siliguri Provincial House for better medical care. Throughout her illness, she remained serene and free from complaint. She faithfully participated in Holy Mass and community prayers as long as her health permitted. As her condition worsened in recent months, she was admitted to Navajivan Hospital, Gayaganga on the first week of February and later to the Palliative Care Center at Hathigisa run by Sisters of the Daughters of Cross on 8th February 2026. Surrounded by the constant prayers and loving presence of Holy Cross and FC Sisters, she peacefully surrendered her soul to God on 12th February at 9 a.m. Sister Salome's life was a beautiful testimony of faith, sacrifice,
service, and joyful commitment. May the Lord, whom she loved and served so faithfully, reward her with eternal bliss and consolation to each and every family member. With deep gratitude and love, we bid farewell to our dear sister Salome Tudu as she journeys to her eternal home. As we entrust her to the Lord's loving embrace, we gratefully remember the life she lived for God and His people. May her soul rest in peace. Now I invite His Lordship, Bishop Paul Simic, to preside over the Holy Eucharistic celebration. अति मान्यवर बिशप स्वामी होली क्रॉस प्रोविंस के प्रोविंशियल सुपीरियर, सभी होली क्रॉस धर्म बहनें और दूर दराज से आए विश्वासीगण, मैं अपने परिवार की ओर से कुछ धन्यवाद के शब्द कहना चाहता हूँ। हम जो यहाँ उपस्थित हैं, हम लोग अभी 50% भी वास्तव में यहाँ पर उपस्थित नहीं हैं और अलग अलग कारणों से हम लोगों में से बहुत कोई नहीं आ सके हैं, लेकिन आज रविवार होने के कारण सभी जो लोग प्रार्थनाएं चढ़ा रहे हैं अपने अपने जगह में। सर्वप्रथम मैं पिता परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि सलोमी जैसा व्यक्तित्व हमारे परिवार को मिला और मैं पिता परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि बहुत चुनौतीपूर्ण परिवार में बढ़कर भी उन्होंने उनको एक धर्म संघीय बुलाहट दिया और धर्म संघीय बुलाहट के बाद भी जितना वो होली क्रॉस की थी उतनी ही वो परिवार भी बनी रही। वो समय मिलने पर हर बच्चों से बात करती थी, हम भाई बहनों से बात करती थी। यदि मुझसे बात करती थी तो वो सारे बच्चों और भाई बहनों के बारे में जानकारी लेगी, वो फ़ोन करेगी तो वो अपना सारा जानकारी मुझे देगी। तो वो जितना ईश्वर से नज़दीक थी उतना ही होली क्रॉस उनके लिए प्यारा था और उतना ही उनका परिवार प्यारा था। बहुत सारी चीज़ें प्रोविंशियल सुपीरियर ने यहाँ सलोमी के बारे में कहा, मैं को दोहराना नहीं चाहता हूँ। मैं अपने परिवार के अनुभव से केवल एक चीज़ को रेखांकित करना चाहता हूँ कि दीदी एक ऐसे व्यक्तित्व थे जो हमारे लिए एक बने रहने का सूत्रधार थी। बहुत सारी समस्याएं आती थी और परिवार बहुत प्रकार की समस्याओं से जूझता था, अभी भी जूझता है, लेकिन दीदी उन सभी परिस्थितियों में भी परिवार को एक बनाए रखी। मैं करीब 1.5 सप्ताह पहले यहाँ दीदी को देखने आया था और जब उसको वापस लाए यहाँ डिस्पेंसरी में करीब 2 दिन समय बिताने के बाद मैं लंच के बाद दीदी के पास गया और बोला, दीदी आज मैं वापस जा रहा हूँ। उन्होंने मुझे देखा तो हो गया थोड़ा समय। मैंने कहा मैं पारिश प्रीस्ट हूँ, पारिश का काम देखना है, अभी 40 आ रहा है, बहुत सारी तैयारी करना है। आप ठीक होंगे तो ज़रूर मैं फिर आऊँगा आपको देखने के लिए। और तब हम लोग दोनों अकेले थे कमरे में। मैंने दीदी को पूछा, अच्छा आजकल आप प्रार्थना करते हैं कि नहीं करते?
जो भाई बहनों का नोक झोंक हमेशा चलता रहता था। तो मैंने उनको पूछा, आप प्रार्थना करते हैं कि नहीं करते? हाँ करते हो। क्या प्रार्थना करते हैं? तो उन्होंने, और ये मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, उन्होंने कहा अभी तक जितने लोगों ने मेरी देखभाल की है और जितने लोग अभी देखभाल कर रहे हैं, मैं उनके लिए प्रार्थना करती हूँ कि ईश्वर उनको आशीर्वाद प्रदान करे। और मैं यदि दीदी को जानता हूँ तो ऐसा करने वालों की सूची बहुत लंबी है, मैं उसका सूची भी नहीं बना सकूँगा सर। अभी से नहीं, शायद 2014 से, जब से वो लखनऊ दौड़ धूप कर रही थी, पटना दौड़ धूप कर रही थी और अलग अलग डॉक्टरों से वो अपना इलाज करवा रही थी, और जब यहाँ सिलीगुड़ी में थी तो फिर अलग अलग डॉक्टर। तो जो हम कहते हैं कि हम मसीह में विश्वास करने वाले लोग आशा की संतान हैं, वो आशा उनमें कूट कूट कर भरी हुई थी। वो बीमार थी, लेकिन बीमारी ने उससे कभी हारा नहीं पाया, वो हार मानने वाली नहीं थी। और क्योंकि मैं जेजुइट हूँ तो जब भी छुट्टी मिलती थी मैं कभी कभी सब साल में 2 बार तक उनको विजिट करता था, बहुत सारी बातें मैं जानता था। उनके पास कोई शिकायत नहीं थी, न ईश्वर के लिए कोई शिकायत थी, न परिवार के लिए कोई शिकायत थी, न हॉली क्रॉस के लिए कोई शिकायत थी। और हम लोग अपने भाई बहन को जानते हैं, हम लोग एक दूसरे का टांग खिंचाई करते थे, वो उसको एंजॉय करते। और शायद मेरे लिए दीदी मेरे जीवन में उसी प्रकार से आई कि बी ग्रेटफुल, यू आर नथिंग टू कंप्लेन अबाउट। और हम लोग, मैं और मेरे छोटे भाई, यदि हम लोग आगे की पढ़ाई कर सके तो उसमें बड़ी दीदी यहाँ बैठी हैं और सलोमी, इन लोगों का बहुत बड़ा हाथ था। यदि ये लोग डिसाइड करते कि हम लोग अपनी पढ़ाई कर लिए और तुम लोग अपना जीवन देखो, हम लोग जा रहे हैं जो भी करना है हम लोगों को, तो शायद आज हम लोग कहाँ रहते हैं हम लोगों को भी पता नहीं। सलोमी ने वही फैसला किया था। जरूर उसको मशमुंडा में छोटा मोटा काम था उसका, लेकिन उस काम को उसने हम लोगों को पढ़ाने लिखाने का एक सहारा बनाया। और जब तक हम लोग पढ़ लिख नहीं गए, मैं जब तक सोसाइटी ज्वाइन नहीं किया, छोटा भाई को आगे पढ़ने की सुविधा नहीं मिली, वो रिलीजियस लाइफ ज्वाइन नहीं की। और उसके बावजूद भी, जैसे मैंने कहा, वो जितना हॉली क्रॉस की थी उतना ही परिवार की भी बनी रही, और शायद उतना ही वो ईश्वर की भी बनी रही। तो मैं अपने परिवार की ओर से, जो यहाँ उपस्थित हैं, जो नहीं आ सके, सबों की ओर से मैं उन सभी डॉक्टरों को याद करता हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिनकी बदौलत आप आज तक दीदी जिंदा थी। उन्होंने बहुत कोशिश किया, बहुत कोशिश की। सभी को डॉक्टरों के हाथ में नहीं है, और इसलिए मैं डॉक्टरों को धन्यवाद देना चाहता हूँ और दीदी की वही प्रार्थना करता रहता हूँ कि प्रभु उनको आशीष दे। और मैं हॉली क्रॉस कांग्रेगेशन को मैंने इस बात को परिवार वालों को भी बताया। जब मैं देखने आया था, दीदी भी देखने आई थी और 1-2 जन देखने आए थे। मैं बोला, इतना ज़्यादा देखभाल तो हम लोग घर में नहीं कर सकते जितना ज़्यादा देखभाल दीदी का हॉली क्रॉस में हो रहा है। दिन रात उसके पीछे लगे रहते हैं, दिन रात कोई ना कोई चिंतित रहता है, क्या खाएगी, कौन सा दवा देने से अच्छा होगा। तो आप लोगों के या हम मानव क्षमता में जो भी था दीदी को देखभाल करने के लिए, आपने सब कुछ लगा दिया उसमें। और इसके लिए मैं अपने परिवार वालों की ओर से, अपनी ओर से हॉली क्रॉस को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। और मैं आशा करूँगा कि जो भी कृपाएँ सलोमी को दी गई थी, वही कृपाएँ हम लोगों को दी जाएंगी, कि हमारे जीवन से ईश्वर की कृपा दूसरों को मिलती रहेगी, ईश्वर की महिमा हमेशा बनी रहेगी। और आज जो ये सुंदर इस बलिदान बिशप स्वामी ने हम लोगों के लिए चढ़ाया है,
गायक दल ने अच्छी गाना गाया है। इन सबों के लिए मैं बिशप स्वामी के सहृदयता के लिए अपना समय निकालते आने के लिए उनको धन्यवाद देता हूँ और गायक दल को भी बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम गहन भावनाओं से भरे इस पवित्र क्षण में कृतज्ञ हृदय से आप सभी का धन्यवाद करते हैं कि आपने हमारे प्रिय सिस्टर सलोमी के अंतिम संस्कार की इस पवित्र यूकरिस्तीय समारोह में सहभागी हुए हैं। श्रद्धेय बिशप पॉल सिमेक, आपका विशेष धन्यवाद। आपने मुख्य याजक के रूप में इस मिसा को संपन्न किया। आपकी उपस्थिति हमारे लिए आशीर्वाद है। आपके सांत्वनापूर्ण वचनों ने हमारे शोक को आशा में परिवर्तित किया और हमें स्मरण दिलाया है कि जो प्रभु में जीते हैं वे प्रभु में ही अनंत जीवन पाते हैं। हम फादर लूकस, फादर श्याम किशोर के विशेष आभारी हैं, जिनके लिए यह क्षण एक भाई और एक याजक दोनों रूपों में अत्यंत भावनात्मक है। हम आपके विश्वास और समर्पण को नमन करते हैं। दूर सेंट्रल और नॉर्थ ईस्ट प्रोविंस से आई हमारी घर बहनें, विशेषकर उनकी बैचमेट्स और इंडिया ईस्ट की सभी होली क्रॉस की धन बहनों, आप सब ने उनके साथ निकटता से जीवन साझा किया है। प्रार्थनाओं में, सेवा में, संघर्षों में और आनंद के क्षणों में आज आपका एकत्रित होना उनके जीवन की गवाही देता है। एक ऐसा जीवन जो पूर्ण रूप से ईश्वर और उनके लोगों को समर्पित था। आप सबका हम आभार व्यक्त करते हैं। हम सिस्टर सलोमी के परिवारजनों के प्रति भी एक गहरी संवेदना और धन्यवाद प्रकट करते हैं। आपने उन्हें कलीसिया को समर्पित किया, विशेषकर हमारे धर्म समाज को, और उन्होंने अपने जीवन से उस बुलाहट को सार्थक किया। इस दुख की घड़ी में हम आपके साथ हैं। आज हम विदा तो कहते हैं पर निराशा में नहीं। हम उन्हें उस प्रभु के प्रेमपूर्ण हाथों में सौंपते हैं जिनकी उन्होंने जीवन भर निष्ठापूर्वक सेवा की। हमारा विश्वास है कि अब वे शाश्वत पिता के साथ स्वर्गीय शांति और आनंद का अनुभव कर रही हैं। ईश्वर उन्हें अनंत विश्राम प्रदान करें। मेरी मंजिल हो तुम ही हम सफर हो, तुम ही हो राह, चलता रहूं मैं तुझ में प्रभु। मेरी मंजिल हो तुम ही हम सफर हो, तुम ही हो राह, चलता रहूं मैं तुझ में प्रभु।